Master. We glorify your holy name. We worship your holy name. We praise you, Lord. We glorify your holy name, Lord. धन्यवाद यीशु. Thank you, Abba Father. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद राजा. धन्यवाद पिता परमेश्वर. Thank you, Lord. Thank you, Master. Thank you, Father. Thank you, Jesus. तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी स्तुति और तेरी आराधना हो. धन्यवाद राजा. धन्यवाद है खुदाया आज के इस पवित्र दिन के. धन्यवाद पिता परमेश्वर हमें सही सलामत रखने के लिए. धन्यवाद प्रभु आपकी हुजूरी के लिए. धन्यवाद इस सेवकाई के लिए. धन्यवाद इस नए दिन के लिए. धन्यवाद प्रभु जी. थैंक यू लॉर्ड मास्टर. वी ग्लोरीफाई योर होली नेम. वर्शिप योर होली नेम. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू जीसस. बदल गई यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई. तूने मुझे है सहलाया. तूने मुझे है छुड़ाया. तूने मुझे है सहलाया. तूने मुझे है छुड़ाया. मैं धन्यवाद करता रहूंगा. यीशु धन्यवाद करता रहूंगा. मैं धन्यवाद करता रहूंगा. यीशु धन्यवाद करता रहूंगा. धन्यवाद 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 धन्यवाद. यीशु ने ऐसा प्रेम जताया. मुझको अपना बेटा बनाया. यीशु ने ऐसा प्रेम जताया. मुझको अपना बेटा बनाया. अपना लहू बहाया. अपनी राह पर चलाया. अपना लहू बहाया. अपनी राह पर चलाया. मैं धन्यवाद करता रहूंगा. यीशु धन्यवाद करता रहूंगा. मैं धन्यवाद करता रहूंगा. यीशु धन्यवाद करता रहूंगा. धन्यवाद 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 धन्यवाद
पापों में डूबा हुआ था, अब जो तुझसे दूर हुआ था। मैं जो पापों में डूबा हुआ था, अब जो तुझसे दूर हुआ था। तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे छुड़ाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे छुड़ाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे है सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे है सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। Lord, I bless your holy name. Lord, I worship your holy name. Lord, this afternoon, again, Lord, we lift up your holy name, because your name is above all name. Your name is higher than any other name. That name is Jesus. Again, I subject myself with this name. I surrender myself in your almighty hand. And Lord, I request you have mercy upon me. And Lord, which ministry, Lord, you given me, through your Holy Spirit, Lord, guide me, lead me, teach me, and correct me for the glorify the name of Jesus and expand the kingdom of God. Lord, I am not worthy. Because of the blood of Jesus, Lord, you make me worthy to worship you, serve you, and Lord, especially pray for people. Thank you, Lord Jesus, for this wonderful ministry. Thank you, Abba Father. Have mercy upon me. Lord, give me your words. Give me your thoughts. Give me your revelations to preach your people. And Lord, many people this afternoon hungry and thirsty for your word. So Lord, fulfill every people's hunger and thirst through your holy, powerful, living word of God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Master, Lord. We
worship you, Lord. And Lord, give us proper strength to serve you, Lord, through your Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Abba Father. Every network problem, I remove completely in the name of Jesus. And Lord, give us powerful network to spread this word in our people. Lord, give us proper ears to hear your voice. Yes, Lord. Open our inner man eyes and show us your way. Thank you, Jesus. Lord, from last 22 parts, we are studying how to satisfy our God. This is 23rd part. So Lord, in this part, Lord, teach us how should we satisfy you, Lord? Because you've given us ministry, satisfaction of heaven. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Abba Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Master. According to your holy word, Mark 11:24. Whatever I ask in this prayer, right now I got it. In Jesus' almighty name, I agree and pray. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Master. Thank you, Abba Father. In the matchless name of Jesus, I welcome you, everyone. Greetings to you in Jesus' name. I say shalom to everyone. The peace of Jesus upon your life. Thank you, Jesus. So, people of God, again, this afternoon we are studying how to satisfy to our God. This is the 23 number part. So, let's open your Bible and again we should read the word Psalms 18 and verse 19. हम पढ़ेंगे भजन संहिता 18 और उसका वचन 19। और यहाँ पे दाऊद कहता है, उसने मुझे निकाल कर चौड़े स्थान में पहुंचाया। उसने मुझे निकाल कर चौड़े स्थान में पहुंचाया। उसने मुझे छुड़ाया, क्योंकि वह मेरे विषय में प्रसन्न था। क्योंकि वो मेरे विषय में प्रसन्न था। आइए हम इंग्लिश में भी इस वर्ड को पढ़ेंगे। Thank you, Jesus. He brought me out into a broad place. He rescued me because he delighted in me. Why he rescued me? Why he brought me out into a broad place? This is the main reason in our life, in our family life, in our ministry life, every areas, we should delight, we should satisfy our God, because this is the main ministry. If in our ministry our God is not satisfied to us, so this ministry is totally just like a hypocrisy ministry. So we should do proper ministry. That's why David say, he brought out into me a broad place and he rescued me. He shared the secret of his life. Powerful secret. If somebody say, why this situation come in my life? Somebody say, why these bondages always come? So this is the answer. If in your life you satisfied your God, so don't worry, Lord will rescue you and Lord will give you the proper broad place. Hallelujah. So this afternoon we welcome to all people of God who is watching on this live video. Especially I warm welcome to Sister Tulsa John Poor from Nepal, and many brothers and sisters are watching here.
and stay with us till end, because today I am sharing very powerful word and many secrets and many mistakes people doing now these days, and that's why they didn't have proper victory in his ministry and personal life and every business areas and jobs areas. What is the reason? What is the exact problem in these people's life? So today, this afternoon, we are sharing proper secrets in to David's life. So let's go to the word. Yesterday we meditated upon this word about the David's life. So 2 Samuel chapter 6 and Bible say, फिर दाऊद ने एक और बार इस्राएल में से बड़े वीरों को जो 30,000 थे इकट्ठा किया। तब दाऊद और जितने लोग उसके संग थे वे सब उठकर यहूदा के बाले नामक स्थान में चले कि यहूदा का वह संदूक ले आए जो करूबों पर विराजने वाला सेनाओं के यहोवा का कहलाता है। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से निकाला और अबीनादाब के उज्जा और अय्यो नामक 2 पुत्र उस नई गाड़ी को हाँकने लगे और उन्होंने उसको परमेश्वर के संदूक समेत टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से बाहर निकाला और अय्यो संदूक के आगे आगे चला। दाऊद और इस्राएल के समस्त घराना यहोवा के आगे सनोवर की लकड़ी और बने हुए सब प्रकार के बाजे, वीणा और सारंगी, डफ, डमरू, झांझ बजाते हुए जब वे नाकोन के खलियान तक आए, तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा कि वहां परमेश्वर के संदूक के पास वह मर गया। तब दाऊद अप्रसन्न हुआ इसलिए कि यहोवा उज्जा पर टूट पड़ा था और उसने उस स्थान का नाम पेरेस उज्जा रखा। ये नाम आज के दिन तक विद्यमान है। और उस दिन तक दाऊद यहोवा से डरकर कहने लगा, यहोवा का संदूक मेरे यहाँ कैसे आए। दाऊद ने, हमने जो इतिहास में से भी देखा, एक इतिहास 13:3 में उसने क्या कहा, चलो हम परमेश्वर का संदूक सियोन में लेकर आए। पर आर्क ऑफ गॉड, लेट्स ब्रिंग द आर्क ऑफ गॉड टू आवर प्लेस। ये इच्छा उसने प्रकट किया और उसने, बाइबल कहती है ये 2 शमूएल का 6 अध्याय में 30,000 लोगों को लेकर गया। 30,000 लोगों को दाऊद लेकर गया और उसने जहां पर पहला शमूएल के 7वें अध्याय पे जैसा हमने देखा था कि पलिश्तियों के देश में से जब संदूक इस्राएल में आया, तब अबीनादाब के घर के पास जिस गायों की गाड़ी थी, उस गाड़ी में जो संदूक रखा गया था, वो संदूक अबीनादाब के घर के पास आके रुक गया। और तब से वही अबीनादाब के घर के पास रहता था। और जब दाऊद राजा होने के बाद, उसने ये नहीं प्लान किया कि मैं मेरे राज्य को कैसे बढ़ाऊं, मैं मेरी सेना को कैसे बढ़ाऊं, मैं शस्त्रास्त्र कैसे बनाऊं। उसके दिमाग में वो प्लान नहीं आया। तो उसके दिमाग में वो प्लान आया कि चलो, एक इतिहास में जो हमने देखा था, एक इतिहास का 13 अध्याय वचन 3 में वो कहता है, चलो हम परमेश्वर का संदूक वहां से लेकर आए, क्योंकि शाऊल के जमाने में, शाऊल के समय में हम उसके पास जा नहीं सकते थे। ऐसी कुछ परिस्थितियां थी। लेकिन जब दाऊद राजा होने के बाद दाऊद के विचारों में एक विचार आता है, क्यों नहीं परमेश्वर का संदूक वहां पे एफ्राथा में अबीनादाब के गरीब के घर में झोपड़ी में रह रहा है, और जिस खुदावन ने
मुझे इतना शाही बादशाह बनाया और इजराइल का राजा बनाया, मुझे एक छोटे से चरवाहे से लेकर इजराइल का इतना बड़ा राजा बनाने वाला परमेश्वर आज झोपड़ी में एक साधारण जगह पर उसका संदूक रखा गया है। दाऊद के भीतर परमेश्वर के प्रति ये जो प्रेम है ना, ये प्रेम को हमें देखना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं आज आपको बहुत ही गहरी बातें बताने वाला हूं। इन बातों के द्वारा है ना आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। क्योंकि जब मैं उड़ीसा में था, उड़ीसा में पास्टर लीडर कॉन्फ्रेंस में मैंने इस कलाम को प्रचार किया था। अब मुझे आपको बताना है कि ये कलाम को मैंने पास्टर लीडर कॉन्फ्रेंस में मैंने 3 दिन लगातार इस वचन के ऊपर प्रचार किया था और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से वहां के आए हुए सारे पासवानों को आशीषित किया था। 2015 की ये बात है और मैं अभी भी याद करता हूं उन घटनाओं को कि खुदावन ने किस तरीके से उन रहस्य को खोला था और किस तरीके से सारे सवालों के जवाब दिए। अब वही खुदावन आज आपसे भी बात करेगा, क्योंकि हम दाऊद के जीवन से देख रहे हैं। दाऊद के जीवन में हम लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें देखते हैं। दाऊद के जीवन में दाऊद ने 3 ऐसी गलतियां की थी। वो 3 गलतियां क्यों हुई? अब उस गलतियां का खामियाजा भी उसे भुगतना पड़ा। क्यों भुगतना पड़ा? दाऊद का जीवन वैसा बहुत ही परफेक्ट था। उसके जीवन में जो 3 गलतियां थी, वो 3 गलतियों में से ये पहली गलती को आज मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। लेकिन उस गलती को तुरंत उसने कैसे सुधार दिया और कैसे परमेश्वर को संतुष्ट किया। कभी कभी गलतियां हमारे जीवन में अज्ञान की वजह से होती है। कभी कभी गलतियां हमारे जीवन में एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस की वजह से होती है। कभी कभी कोई कहता ना, अरे ये बहुत ओवर कॉन्फिडेंस पे चला गया, इसीलिए ये मुंह के बल गिर गया। मुझे आपको बताना है कि आज हमारे जीवन में, हम मनुष्य स्वरूप में है, कभी कभी हमारे जीवन में गलतियां हो सकती है। इसी दाऊद को हमने जब पिछले बार जब देखा, ये दाऊद पूरी तरह से फलिस्तियों से युद्ध करने के वक्त वो 2 बार खुदावन से पूछता है कि मैं जाऊं या ना जाऊं। लेकिन सडनली जब हम 6ठे अध्याय में आते हैं, ये 6ठे अध्याय में, दूसरा 6ठे अध्याय में दाऊद परमेश्वर से पूछता नहीं है। इस 6ठे अध्याय में दाऊद, जो इस 5वें अध्याय के आखिरी तक हम देखते हैं कि यही दाऊद परमेश्वर के ऊपर डिपेंड रहने वाला, लेकिन 6ठे अध्याय में ये दाऊद परमेश्वर का संदूक लाने के लिए परमेश्वर से नहीं पूछ रहा है। युद्ध जीतने के लिए या युद्ध करने के लिए वो यहोवा से वो बात कर रहा है। लेकिन यही दाऊद जो संदूक है, वो संदूक को एफ्राता में से, अबीनादाब के घर से यरूशलेम में लाने के लिए वो खुदा के पास से वो गाइडेंस नहीं ले रहा है। मुझे आपको बताना है, यही बात का खामियाजा दाऊद को भुगतना पड़ा। और एक तो पहली बात, नंबर 1, दाऊद ने खुदावन से पूछा नहीं। नंबर 2, दाऊद ने खुदावन के तरीके को जाना नहीं। कभी कभी हमारे जीवन में हमारी इच्छा अच्छी होती है, हमारी इच्छाएं बहुत अच्छी होती है, लेकिन तरीके कभी कभी गलत होते हैं। और इस तरीके के गलत होने के वजह से बहुत सारे बार उज्जाओं का वहां पे उज्जा हनन हो जाता है। जैसे वहां पर वो जगह का नाम रख दिया गया पेरेस उज्जा। मुझे आपको बताना है कि दाऊद की गलती हुई क्या है। दाऊद ने 30,000 लोगों को इकट्ठा किया। बाइबल कहती है 30,000 लोगों को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद बहुत सारे वीणाओं को, सारंगियों को, ढोल ताशे जो भी लेकर वो वहां से निकला। और उसने, बाइबल कहती है कि एक नई गाड़ी बनाई। देखो हम पढ़ेंगे 2 शामुएल उसका 6ठा अध्याय और उसका 3 वचन। 2 शामुएल 6:3 में, तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर, कौन सी गाड़ी में? नई गाड़ी में चढ़ाकर, ओके, नई गाड़ी में अबीनादाब का पुत्र अय्यो जो है वो आगे चल रहा है, ओके, और जो उज्जा है वो बैलगाड़ी के अंदर से बैलों को हाँक रहा है। और सडनली ऐसा होता है कि नाखून के टीले के पास जब ये गाड़ी आती है, नाखून के खलियान के पास जब ये गाड़ी आई, तो बैलों ने ठोकर खाई। और बैलों ने ठोकर खाने के बाद संदूक जब गाड़ी के बाहर गिरने ही वाला था, तो जैसे साउथ अफ्रीका का एक बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर था जो मुझे बहुत अच्छा लगता था, जिसका नाम था जॉन्टी रोड्स।
आज बहुत सारे यंगस्टर क्रिकेटर उसको कॉपी करते हैं, जिस तरीके से वो डाई मारता था, जिस तरीके से डाई मारकर वो बॉल को कैच करता था, बहुत जबरदस्त वो फील्डर था। और यहाँ पर उजिया ने उसी तरीके से डाई मारते हुए गिरने वाले संदूक को थाम लिया। अभी सवाल ये आता है, संदूक गिरने वाला था, उजिया ने संदूक को थाम लिया कि संदूक गिर ना जाए, संदूक टूट ना जाए, संदूक को डस्ट ना लगे, संदूक को गंदगी ना लगे, संदूक के जो भी लकड़ी के पार्ट थे वो टूट ना जाए। मुझे आपको बताना है, क्या उजिया की ये जो निर्णय लेने की जो बात थी वो गलत थी या सही थी? आप यहाँ पे अगर आने के बाद अगर सोचोगे उजिया की गलती है तो क्या गलती है? उसने तो वो बैलगाड़ी में से जो संदूक बाहर गिर रहा था उसने तो उसको थामने की कोशिश की है। गलत क्या किया उसने? लेकिन बाइबल कहती है संदूक के पास उजिया मर गया। संदूक के पास उजिया मर गया। संदूक के पास दाऊद डर गया। संदूक के पास दाऊद अप्रसन्न हो गया। संदूक के पास दाऊद एक कदम आगे बढ़ाने के लिए डर गया। वो सोचने लगा, अरे अभी नंबर तो उजिया का लग गया, शायद दूसरा नंबर मेरा तो नहीं लगेगा। आप जस्ट उस बात को कल्पना करो परमेश्वर के लोग, उस बात को जस्ट इमेजिन करो। 30,000 लोग है वहां पे, सारंगी, वीणा, नाना प्रकार के नरसिंगे, ढोल, नगाड़े सब धाम 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 बज रहे और सडनली उजिया मर जाता है। एक गहरी शांति वहां पर आ गई। सब लोग डर के थरथराने लगे। गलती क्या हुई? गलती क्या हुई वहां पे जो उजिया मारा गया? मुझे आपको बताना है, आज के डेट में भले ही बहुत सारे उजिया शारीरिक दशा में नहीं मर रहे, लेकिन आत्मिक दशा में वो मृत्यु की ओर जा रहे। आप कहेंगे पास्टर ये आप किस आधार पर आप ये बात बता रहे? मुझे आपको आज कुछ बातें गहराई में बतानी है। कुछ लोग खुदावन की सेवकाई को बहुत हल्के में लेते हैं। कुछ लोग पासबान की बच्चे होने में बहुत हल्के में लेते हैं। सेवकों और सेवकाई के बच्चे होने के लिए बहुत हल्के में लेते हैं, और इसीलिए उजिया जैसे लोग वहां पर उन्होंने सेवकाई को बहुत हल्के में लिया था। और दूसरी बात ये भी बताना है कि अबीनादाब जो उनका बाप था, उस बाप के जो भी कर्तव्य की बातें थी, अबीनादाब ने जो उनको सिखाना था, उजिया को और अय्यो को जो बातें अबीनादाब को सिखाई नहीं गई थी, तो वो अपने बच्चों को क्या सिखाएगा? आज सेम कंडीशन वही है। बहुत सारे पासबानों को खुदा का कलाम ठीक से पता नहीं है, तो वो अपने बच्चों को क्या पढ़ाने वाले हैं? आज हमारे क्रिश्चियनिटी की ये सबसे बड़ी एक ऐसी दुर्घटना है, एक ऐसी शोकित बात है कि बहुत सारे पासबान तो बन गए हैं, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को परमेश्वर के वचनों की सही शिक्षा नहीं दी है। इसीलिए उनके उजिया भले शारीरिक दशा में नहीं मर रहे, लेकिन आत्मिक दशा में मृत्यु की ओर और दुनिया की राह पे चलकर अपना आत्मिक जीवन नाश कर रहे। अजीजों, मैं आज जो बातें आपको बहुत ही आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक आत्मिक आवेश के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं इस बात के द्वारा मैंने जैसे कहा कि 2015 में मैंने ये प्रचार ओडिशा में वहां पर कोरापुट नाम के जिले में जो मीटिंग हुई थी, वहां पर 3 दिन लगातार पासबानों के सम्मेलन में मैंने इस प्रचार को, मुझे परमेश्वर ने ये प्रचार दिया था कि आज इन पासबानों को सीखा कि क्या अहमियत है हमारे सेवकाई की, क्या अहमियत है खुदावन के वचन की, क्या अहमियत है हमारे परिवार की, क्या अहमियत है हमारे परिवार के बच्चों की। आज बहुत सारे अबीनादाब जैसे सेवकाई करने वाले लोग अपने उजिया और अय्यो को नहीं सिखा रहे, इसीलिए उनके उजिया आज कहीं ना कहीं आत्मिक दशा में संदूक के पास मर रहे हैं। ये बात मुझे आप बताने के लिए मुझे बहुत ही दुख महसूस होता है। ये बात आपको बहुत गहराई से समझनी होगी अजीजों, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज बहुत सारे लोग इजीली पासबान बन जाते हैं, कोई स्वयं घोषित प्रेरित बन जाता है, कोई स्वयं घोषित भविष्यवक्ता बन जाता है, कोई टीचर बन जाता है, कोई सुसमाचार बन जाता है। लेकिन मुझे आपको बताना है, जिस खुदावन की इबादत करने के लिए, सेवकाई के लिए आप खड़े हो, क्या आप खुदावन के कलाम को और उसके तौर तरीकों को आप जानते हो? मुझे आपको बताएं, जब पैलेस्टाइन में से मैं थोड़ा सा आपको इतिहास में लेके जाना चाहता हूं। जब पहले शामुएल के 7वें अध्याय में हम जब चलते हैं, बाइबल कहती है जब फलिस्तियों ने गायों की एक गाड़ी बनाई, 2 दुभती गाय, दूध देने वाली गायों को
उस बैलगाड़ी के साथ जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद जब उन्होंने पैलेस्टाइन से इजराइल में उस संदूक को गाय की गाड़ी में डालकर भेजा, तो बाइबल कहता है कि तब पहला शामिल 7:1, तब किर्यातैम के लोगों ने जाकर यहोवा के संदूक को उठाया जो अबीनादाब के घर में जो टीले पर बना रखा था। यहोवा के संदूक की रक्षा करने के लिए अबीनादाब के पुत्र एलियाजर को पवित्र किया। तो अभी ये जो एलियाजर है, जो अबीनादाब का पुत्र है, अबीनादाब ये उज्जा का एक प्रकार से दादा पकड़ सकते आप। अभी यहाँ पे संदूक उनके घर के पास आया, इसलिए लोगों ने क्या किया, इनको ही पासबान बना दिया। अब ये लोग भी पासबान बन गए। पासबान बनने के बाद उनको ऐसा लगा संदूक अपने घर में रहने के बाद हम परमेश्वर के सेवक बन गए, चलो उनको बना भी दिया। लेकिन इन लोगों ने जिस संदूक को अपने घर में रखा था, इस संदूक की सेवकाई किस तरीके से की जाती है उसकी तरीका को उन्होंने सीखा नहीं। अब उसका परिणाम क्या हुआ, उसका परिणाम उज्जिया मारा गया। अभी मैं सोचता हूं दाऊद को भी ये बात क्यों नहीं समझी। दाऊद तो हमें भजन संहिता 1 में क्या कहता है, धन्य वो पुरुष जो परमेश्वर की व्यवस्था में दिन रात मगन रहता है। देखो ये बात को आपको ये बहुत ही जबरदस्त रेवलेशन है। अगर इस बात को आप समझोगे ना, तो मुझे देखने वाले पासबान हो, सेवक सेविका हो, अगर इस बात को आप समझोगे ना, तो मुझे आपको बताना है आपके उज्जाओं को, जो आपके बच्चे हैं ना, उनको आप बेहतरीन तरीके से खुदा के राज्य के लिए इस्तेमाल करोगे। लेकिन प्रॉब्लम यह होता है हम लोग नॉन बिब्लिकल बातों को बहुत अप्लाई करते हैं, लेकिन बिब्लिकल बातों को अप्लाई नहीं करते हैं। व्यवस्था के आधार पर जो वचन है उसको हम लागूकरण बहुत कम करते हैं, लेकिन व्यवस्था के आधार के बिना जो बातें रहती है ना, उसको लेकर आते हैं। आज बहुत सारे पासबान अपने बच्चों को गिटार लेके दे रहे, ड्रम सेट लेकर दे रहे, उनको बहुत म्यूजिकल नॉलेज दे रहे, उनको नोट्स दे रहे म्यूजिकल, लेकिन बहुत कम पासबान है जो अपने बच्चों को सही तरीके से तौर तरीका सिखाते हैं। मैं तारीफ नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो लाइव मैसेज में जो परमेश्वर के अभिषिक्त दास पास्टर विश्वास गड़ा जो नगर जिला में से सेवकाई करते हैं, मैं उनके बच्चों को देखता हूं, मैं उनके परिवार को देखता हूं। उनके बच्चे जो भले गिटार लेके भले यहाँ पे वो नाच रहे झूम रहे नहीं है, लेकिन उनके बच्चे गांव गांव में जाकर परमेश्वर का प्रचार ट्रैक्स बांटकर कर रहे, घर घर में यीशु मसीह को पहुंचा रहे। भले दुनिया की नजर में आज बहुत सारे लोगों के, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे बच्चे उस स्टेज पे आना नहीं चाहिए, आना चाहिए। हमारे बच्चों के हाथ में गिटार के साथ साथ, हमारे बच्चों के हाथ में वीणा के साथ साथ दाऊद के जैसे तलवार भी होनी चाहिए। आज ये नहीं होने की वजह से बहुत सारे जवान लड़के लड़कियां इंटरकास्ट मैरिज कर लेते हैं, गलत बातों में पड़ जाते हैं। इसका कारण यह है कि उन्हें अपने परमेश्वर की तौर तरीके सिखाए नहीं गए। अबीनादाब का पुत्र एलियाजर को याजक कर दिया गया। और आगे जाके यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जब दाऊद ने संदूक को जब यरूशलेम में लाने का प्लान किया, वो प्लान में दाऊद ने क्या किया पता है? दाऊद ने उसने क्या किया, उसने हिस्ट्री निकाली। हिस्ट्री क्या निकाली उसने? ये जो संदूक पैलेस्टाइन में कैसे आया था, पैलेस्टाइन में वो गाय की गाड़ी में लगाकर नई गाड़ी में डालकर इस संदूक को लाया गया था। दाऊद ने बोला चलो नई गाड़ी बनाओ। दाऊद ने ये नहीं देखा कि व्यवस्था के अनुसार संदूक को कैसे लाया जाता है। दाऊद ने ये नहीं सोचा अकॉर्डिंग टू बाइबल हाउ वी कैरी द आर्क ऑफ गॉड। Ark of God means presence of God. How we should carry the presence of God. दुनिया के तौर तरीके में से हम परमेश्वर की हुजूरी को लेकर नहीं आ सकते हैं। हमारे अच्छे आवाज से, हमारे अच्छे बजाने से, हमारे अच्छे गाने से, हमारे बड़े मॉब के द्वारा हम हुजूरी को लेकर नहीं जा सकते हैं। वहां पे 30,000 लोग थे, झांझ, वीणा, गिटार, नगाड़े लेकर बड़े बड़े शोरगुल में वो जा रहे थे। लेकिन सडनली संदूक जैसे नाखून के खलियान के पास बैलों ने ठोकर खाने के बाद जैसे बाहर गिरा, अब वहां पर उज्जिया ने पकड़ने की कोशिश की। उज्जिया संदूक के पास मर गया। क्यों मर गया? नंबर 1, दाऊद जो हमेशा खुदावन से मार्गदर्शन लेता था,
He always took guidance from the Jehovah. But this time he made a mistake. इस वक्त उसने गलती की। उसे जिस यहोवा का संदूक लाना है उस यहोवा को नहीं पूछा। चलो उसको नहीं पूछा तो पूछा, लेकिन उसके जमाने में कुछ लेवी लोग थे जो ज्ञानी लोग थे, जिनको पता है कि परमेश्वर के संदूक को जब मूसा के जमाने में परमेश्वर ने जो हिदायत दी गई थी उस हिदायत के अनुसार परमेश्वर के संदूक को किस तरीके से लेकर जाना चाहिए। लेकिन दाऊद ने क्या किया, वहां पर उसने 30,000 योद्धाओं को इकट्ठा किया और सारे इस सारे माहौल में उसने अपनी सोच के अनुसार फिर उसने खबर निकाली होगी, अरे ये संदूक अभिनादाब के घर पे कैसे आया था। तो किसी ने बताया होगा, अरे अभिनादाब के घर पे पैलेस्टाइन के लोगों ने भेजा था। कैसे भेजा था? एक नई गाड़ी में भेजा था। कौन सी गाड़ी थी? बैल की गाड़ी थी, गाय की गाड़ी थी। फिर दाऊद ने बोला चलो हम भी एक नई गाड़ी बनाते हैं। आज बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे लोगों की गवाही आती है, मैंने जीवन में ये हुआ। बहुत सारे नॉन बिब्लिकल गवाहियों के ऊपर लोगों ने अपने विश्वास की नींव को रखा है, इसलिए उनके जीवन में वो कहीं ना कहीं वो अपने जीवन में दे आर डिफीटेड फ्रॉम मेनी प्रॉब्लम्स। वो आज हारे हुए लोग हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैलेस्टाइन के तरीके को इस्तेमाल किया था। और यिर्मयाह नबी अपनी किताब में कहता है राष्ट्रों के संप्रदाय के पीछे मत चलो। आज बहुत सारी बात क्या हो रहा है पता है? आज बहुत सारे फॉरेनर कल्ट्स को लेकर लोग कहते हैं कि हम हुजूरी को लेकर आ रहे हैं। फॉरेनर कल्ट्स क्या आ रहे हैं? फॉरेनर संप्रदाय क्या आ रहे हैं? सर के ऊपर कोई लेडी ले रही है, वो अपने बालों को काट रही है और हमारे लोग भी बोलते हैं क्या हो गया नहीं लिया तो। मुझे आपको बताना है आपकी इच्छा योग्य है लेकिन तरीका गलत है। आपकी इच्छा योग्य है, योर डिजायर इज राइट बट पैटर्न इज रॉन्ग। आपका पैटर्न आपको बदलना होगा। आपका पैटर्न आपको वचन के आधार पे आपका पैटर्न बनाना होगा। लेकिन आज बहुत सारे लोग अपने तौर तरीके से आए हैं। कुछ लोगों ने अपने चर्च को बहुत म्यूजिकल बना के रखा है, जहां पे 2-2 घंटा आराधना होती है, अब वचन आधा घंटा भी प्रीच नहीं किया जाता है। कुछ लोगों ने अलग पैटर्न जो फॉरेन कंट्री से, अफ्रीकन कंट्री से आता है, तेल पानी का पैटर्न बना के रखा है, लेकिन जीवित वचन जो पानी और खाना है उसको उन्होंने बांटना बंद कर दिया है। क्या यह तरीका? दाऊद का ये जो गलती है, ये गलतियां आज बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री कर रही है। अब आज लोगों को लगता है यहाँ पर हजारों लोग जा रहे। मुझे आपको बताना है हजारों लोग यहाँ पर 30,000 लोग दाऊद के साथ थे, लेकिन वो हारे हुए लोग थे जिन्होंने संदूक को लेकर नहीं जा पाए। वे लोग थे जिन्होंने उज्जा की मौत देखी थी। आज मेरी बातें को सुनकर शायद आपको कड़वा लगता होगा। स्पेशली मैं आज आपको जो देख रहे हैं, जो देखेंगे, शायद कोई पासवान होंगे, जो विश्वासी होंगे, जो सेवकाई में होंगे, मुझे आपको बताना है आपके बच्चों को खुदावन के तौर तरीके अच्छी तरीके से सिखाओ। अगर तौर तरीके नहीं सिखाओगे तो मुझे आपको बताना है कि आपके बच्चे भले उज्जा के जैसा शारीरिक दशा में नहीं मृत्यु पाएंगे, लेकिन आत्मिक दशा में मृत्यु के ऊपर चल रहे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आपको मेरी बातों के ऊपर बहुत ही गहराई से और बहुत ही गंभीरता से सोचना होगा। You have to think very seriously, बहुत ही सीरियसली। फिर हम लोग यहाँ पर आने के बाद आपके दिमाग में ख्याल आया होगा, फिर गलती हुई तो क्या गलती हुई? इसमें प्रॉब्लम हुआ तो क्या हुआ? समस्या क्या हुई? क्या गलती हुई वहां पे? तो गलती का कारण समझने के लिए पहली बात, नंबर 1, दाऊद ने खुदावन से पूछा नहीं। नंबर 2, दाऊद ने संदूक को किस तरीके से लाना चाहिए इसके प्रति दाऊद के पास पूरा ज्ञान नहीं था। नंबर 3, जो संदूक को बचपन से संभाल रहे थे उन्हें यह नहीं पता था कि संदूक को किस तरीके से संभाला जाता है। ये 3 बातें हैं। खुदा को नहीं पूछा, संदूक के बारे में व्यवस्था को नहीं पूछा, और तीसरी बात, जो बचपन से संदूक को संभाल रहे थे उन्होंने उस तौर तरीके को नहीं सीखा। ये 3 महत्वपूर्ण बातें हैं प्रियो।
ये 3 महत्वपूर्ण बातें आज बहुत सारे अजीजों, बहुत सारे लोगों के जीवन में ना, आज वो लोग क्या फॉलो करते हैं पता है? आज वो लोगों के ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। बेनियन ऐसा मिनिस्ट्री कर रहे हैं तो मैं भी ऐसा करूंगा, कैफे डॉलर ऐसा मिनिस्ट्री कर रहे हैं तो मैं ऐसी मिनिस्ट्री करूंगा, पीटर सिल्वे ऐसी मिनिस्ट्री कर रहे हैं मैं भी ऐसी मिनिस्ट्री करूंगा। लेकिन मुझे आपको बताना है, दुनिया के तौर तरीके से खुदावन की मिनिस्ट्री होती नहीं है। शायद आपकी इच्छा योग्य है लेकिन तरीका गलत है तो उज्जिया जरूर मरेगा। अगर उज्जिया को बचाना है और इसी उज्जिया को खुदावन की हुजूरी को लेके आगे चलने के लिए अगर खड़ा करना है तो मुझे आपको आज कान खोलकर सुनो, आपको बताना है, आपको आपके उज्जियाओं को सिखाना होगा, आपको खुद भी सीखना होगा। ना अबीनादाब ने सीखा, ना एलियाजर ने सीखा, ना अय्यो ने सीखा, ना उज्जिया ने सीखा। इसका परिणाम क्या हो गया? उनके सामने उनके गांव में उज्जिया मारा गया। एक भय का वातावरण छा गया, एक मातम छा गया। क्यों छा गया? क्योंकि उज्जिया, जैसे मैं दुनिया की बातें नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन जो हमारे भारत में महाभारत हुआ, वो महाभारत में एक जवान मारा गया, कहते हैं अभिमन्यु। अभिमन्यु क्यों मारा गया पता? अभिमन्यु उस युद्ध में इसलिए मारा गया क्योंकि वो कौरवों का वो जो षड्यंत्र किया गया था उसके अंदर घुसना जानता था लेकिन बाहर आना नहीं जानता था, इसलिए वो मारा गया। मैं एक दुनिया का तरीका बता रहा हूं, ये कोई परमेश्वर की बात नहीं, मैं लड़ाई की बात कर रहा हूं। हम जिस युद्ध में है ना, उस युद्ध में इन और आउट, ये दोनों बातें हमें तौर तरीके के द्वारा हमें पता होनी चाहिए। आज बहुत सारे हमारे लोग, हमारे जवान केवल गिटारिस्ट बन गए हैं, वर्शिपर बन गए, आराधक बन गए, लेकिन मुझे बताने के लिए बहुत दुख होता है, उनके पास वचन का ज्ञान नहीं है। आज वो वचन में नहीं है, वो पवित्रता में नहीं है, वो अपने परमेश्वर को, उनको जक्कई और जकरिया में का भेद नहीं समझता है। ऐसे लोग हैं जो केवल अच्छे आलाप में, अच्छे सुरों में गाते हैं, लेकिन दुख की बात यह है अजीजों, आज उन्हें कलाम नहीं पता है। अब जिनको कलाम आज पढ़ने, प्रचार करने के लिए बहुत सारे ऑनलाइन आ रहे ना, वो क्या प्रचार कर रहे पता है? बना बनाया मसाला प्रचार कर रहे। वो इंटरनेट पे जाओ, फेथ बोल के आप गूगल पे डाल दो, आपको बड़े मैसेजेस मिलेंगे सभी रेफरेंस के द्वारा। उनके मैसेज जब वो देते हैं तो मैसेज में वो केवल जैसे एक टीचर एक बुक को पढ़ता है और उस बुक को जैसे वहां पे ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखकर वो लोगों को सिखाता है, विद्यार्थियों को, उस तरीके से चल रहा है। उनका व्यक्तिगत कुछ भी अनुभव नहीं है। अब मुझे आपको बताना है कि जो अनुभव आपका नहीं है वो प्रचार आप कर भी नहीं सकते, फिर वो एक प्रकार का हिपोक्रेसी मिनिस्ट्री होगा जिसे ढोंग की सेवा कही जाएगी। आज मुझे आपको बहुत सारी बातें शायद कड़वी लगती होंगी, लेकिन आपको ये बातों को समझना होगा। फिर गलती हुई कहां पर? तो मैं आपको थोड़ा सा व्यवस्था में लेके जाना चाहता हूं। व्यवस्था में संदूक को लेके जाने का एक तरीका था। संदूक को उठा के लेके जाने का, जैसे पुराने जमाने में दुल्हन की पालकी निकलती थी, उस पालकी में जो 4 लोग उस पालकी को उठाते थे या 2 लोग जो खंबे को कंधों पे उठा के वो लेके जाते थे। आज मुझे आपको बताना है कि पुराने नियम में जब मूसा को परमेश्वर ने ये व्यवस्था की बातें बताई, कैसे होना चाहिए मेल मिलाप वाला तंबू, कैसे संदूक होना चाहिए, पवित्र स्थान कैसा होना चाहिए, परम पवित्र स्थान कैसा होना चाहिए, आंगन में क्या होना चाहिए, क्या नियम है वहां पर, किधर वेदी होनी चाहिए, किधर क्या होना चाहिए, सारी बातें जो स्वर्ग में थी वो सब उसको बताई थी और उसके अनुसार लोग कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या? यहाँ पे जो गलतियां उज्जिया या अबीनादाब या एलियाजर के द्वारा हुई वो क्यों हो गई? क्योंकि वो जानते नहीं थी कि व्यवस्था के अनुसार संदूक को क्यों लाना चाहते। दाऊद ने सुना था, फलिस्तियों ने बैलगाड़ी में डाल के भेजा था, बस उसके दिमाग में वही था, लेकिन ये तरीका नहीं था। हम परराष्ट्रियों के तरीके से हमारे खुदावन की इबादत नहीं कर सकते। परराष्ट्रियों के तरीकों से हम हमारे राष्ट्र में खुदावन की सेवकाई नहीं कर सकते। अजीजों, आपको ये समझना बहुत जरूरी है। मुझे आपको बताना है कि परराष्ट्रियों के तरीके से आप अगर तौर तरीकों को अपनाओगे तो मुझे आपको बताना है, लोग आपको शारीरिक दशा में ठीक बोलेंगे, लेकिन आत्मिक दशा में स्वर्ग आपको जीरो मार देगा। क्या हुआ फिर? मैं थोड़ा आपको उसका नॉलेज देना चाहता हूं। वो नॉलेज ये है कि जब बाइबल कहती है जब जब भी मेघ स्तंभ, जो बादल का खंबा जब मेल मिलाप वाले तंबू से उठता था या अग्नि का खंबा जब उठता था, तब इजराइलियों के लिए संकेत था कि हमें आगे कूच करना है,
हमें आगे प्रस्थान होना है, हमें आगे चलना है। तो जब आगे चलना है ना, तो वहां पे अलग अलग सेवा दी गई थी। अब वो सेवा हमें गणना की किताब में दिखती है। मैं वहां पर आऊंगा, आपको कुछ बातें वहां की गहराई की बताऊंगा। तो उस सेवा में लेवी गोत्र के अंदर हारून के जो बच्चे थे, जो याजकीय काम करते थे, याजकीय काम में अलग अलग काम उनको दिया गया था। धूप जलाना, वो होम वेदी पे उस बलिदान को बलिदान करना, जो भी बातें सब करना है। लेकिन वहां पे मूसा के गोत्र के जो लोग थे, मूसा के 3 बच्चे, मूसा को 3 बच्चे थे, पता है आपको? एक का नाम था गेर्शोम, दूसरे का नाम था मरारी और तीसरे का नाम था कहाती। अभी ये सीक्वेंस मत देखो कौन बड़ा कौन छोटा, लेकिन मैं 3 बच्चे आपको बता रहा हूं, गेर्शोमी, कहाती और मरारी। अब ये 3 लोगों को है ना अलग अलग सेवकाई दी गई थी। गेर्शोमी जो थे ना, उनको मंडप का काम दिया था। ये लोग इवेंट मैनेजमेंट वाले थे। गेर्शोमी जो थे, मूसा का बड़ा बच्चा, गेर्शोम को काम दिया गया था, गेर्शोम के कुल को, उस गोत्रों को काम दिया था वो मंडप का जो कपड़ा है, मतलब मेल मिलाप वाले तंबू का जो कपड़ा है, जो पवित्र स्थान को जोड़ने वाला पर्दा है, इन सारे पर्दों को, मतलब जो वस्त्र है, उनको अच्छी तरीके से लपेट कर अच्छी तरीके से उनको संभाल के रखना, उनको कैरी करके लेके जाना। फिर उसके बाद जो मरारी वंश था, मरारी वंश को काम दिया गया था, मरारी वंश को काम दिया था कि जो लकड़ियां होती थी, स्टेज है, जो भी वहां पे जो भी वस्तुएं थी, जैसे शुद्धिकरण का जो बर्तन था, जैसे वो होम वेदी थी, जैसे जो आंगन में जो भी जिस प्रकार से उस मेलमाला तंबू को जिस लकड़ियों के द्वारा कवर किया जाता था, इनको वो काम दिया गया था, वो लकड़ियों को अब उन वस्तुओं को संभाले। लेकिन कहाती वंश जो था, कहाती वंश को एक अलग काम दिया गया था। और वो काम क्या था? वो काम ये था, पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान में जो भी पवित्र वस्तु है, धूप वेदी, वो रोटी का मेज हो गया, दीप स्तंभ हो गया, फिर उसके बाद आता है परम पवित्र स्थान में संदूक को उठाना। ये काम किसको दिया गया था? वो कहाती वंश को दिया गया था। लेकिन ये काम करते वक्त उनको कुछ बातों की हिदायत दी गई थी। आइए उन हिदायत को हम पढ़ेंगे। चलते हैं गणना की किताब में, गिनती का बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 4 एंड वर्स 15 वचन। जब हारून और उसके पुत्र छावनी के कूच के समय पवित्र स्थान और उसके सारे सामान को ढांप चुके, तब उसके बाद कहाती वंश उसके उठाने के लिए आए, पर किसी पवित्र वस्तु को ना छुए। उठाए लेकिन ना छुए, उसको उठाने का भी तरीका था। आगे देखो, ऐसा ना हो कि वो मर जाए। पवित्र वस्तु को अगर वो छूते हैं तो मर जाएंगे। यहाँ पे हिदायत दी गई है, चेतावनी दी गई है। कहातियों के उठाने के लिए मेल मिलाप तंबू के यही वस्तुएं है, ये वस्तुएं। अभी आगे चलते हैं। फिर आगे दिया गया है, बाइबल कहती है, और वे पवित्र वस्तु के 20 वचन पढ़ रहा हूं मैं डायरेक्ट। पवित्र वस्तुओं के देखने को क्षण भर के लिए भी भीतर आने ना पाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो मर जाए। और ये जो कहातियों के जो गोत्र है, ये जो गोत्र को केवल संदूक जब उठाते थे, तो संदूक को, जैसा अगर हम उसको डीप में नहीं जाएंगे, इतना आपको पढ़ने के लिए समय लगेगा। आप आपके हिसाब से जहां पर संदूक बनाने के लिए परमेश्वर ने कहा, वेदी बनाने के लिए कहा लेवियों की किताब में, आप वहां पे जाके पढ़ेंगे। तो संदूक को कड़ियां होती थी, संदूक को दोनों तरफ से, यहाँ पे 2 कड़ियां, उस बॉक्स को यहाँ पे 2 कड़ियां, यहाँ पे 2 कड़ियां। उस कड़ियों को, संदूक को देखना भी नहीं था, वो कड़ियों में वो बम्बू को डाला जाता था, लकड़ी को, और वो लकड़ी बरोबर कड़ियों से आर पार जाती थी। और आगे 2 लोग, पीछे 2 लोग वो संदूक को कांधों पर उठाकर संदूक को लेके जाते थे। आपको पता है, संदूक उठाने वाले, जब बाइबल कहती है, जब यरदन को बड़ी बाढ़ आई होती, यहोशुआ के जमाने में
बड़ी बाढ़ आई हुई थी। और उस जमाने में संदूक उठाने वाले संदूक उठाकर उन्होंने जैसा यरदन को पैर लगाया, यरदन 2 हिस्से में फट गई। संदूक उठाने का एक तरीका है, संदूक लेके जाने का एक तरीका है, और संदूक को आज के डेट में कहा जाता है द प्रेजेंस ऑफ गॉड। प्रेजेंस ऑफ गॉड केवल नाचने गाने बजाने से कैरी नहीं होता है, तो प्रेजेंस ऑफ गॉड को लाने का एक तरीका है। प्रेजेंस ऑफ गॉड में हम कैसे भी बेतुकी बातें नहीं कर सकते हैं, हम बदतमीजी से हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमारा खुदावन व्यवस्था का है, हमें व्यवस्था के अनुसार चलना है। मुझे आपको बताने अजीजों, गलती क्या हुई पता है? दाऊद ने ये बातों की तलाश नहीं की कि संदूक किस तरीके से लाया जाता है। खुदावन की हुजूरी को दुनिया के तरीके से, मुझे एक भाई मुझे मिला था। अब वो भाई मुझे कहने लगा, वो एक बड़ा वर्शिपर है, फेमस व्यक्ति है, मैं नाम नहीं लूंगा, आप जानते हैं उस व्यक्ति को, महाराष्ट्र का, पुणे का है। वो मुझसे कहने लगा, बोले पास्टर जी मुझे ऐसा लगता है ना जैसे ये लोग अन्य जाति के लोग अपने जो भी उनके त्योहार रहते हैं, उन त्योहारों में वो ढोल नगाड़े ताशे लेकर बड़ी की बड़ी भीड़ निकलती है, और हमको कितनी तकलीफ होती है उनसे, बड़े बड़े डीजे लगाते। मेरी एक इच्छा है, उन्होंने कहा मेरी इच्छा है, मैं भी चाहता हूँ कि अपने सारे चर्च एक दिन पुणे के लक्ष्मी रोड पर आ जाए। जैसे लक्ष्मी रोड पे जैसे अन्य जाति के परमेश्वर की बारात निकालती है, वैसे हम भी निकलेंगे, ढोल ताशे नगाड़े ड्रम सेट डीजे बीजे लगाकर चलेंगे। मैंने उसको कहा भाई मेरा खुदावन दुनिया का खुदावन नहीं है। मैंने उसको ये एग्जांपल दिया, दाऊद ने आपके जैसी सेम गलती की थी। कहा पहले दाऊद ने सेम गलती की थी, 30,000 लोग थे बजाने वाले गाने वाले, लेकिन हुआ क्या पता है? इस गलती की वजह से एक उज्जा मारा गया। वो व्यक्ति का मुंह छोटा हो गया मेरे को देखकर। मेरा ये ख्याल सुनकर मैंने उसको कहा भाई मैंने दुनिया के तरीके से नहीं, मैंने बाइबल के तरीके से बताया, जमता है तो ले, नहीं जमता है तो अपनी दोस्ती ऐसी भी बनी रहेगी। आज हम दुनिया के तरीके से अब किसके साथ कंपटीशन में है? अरे हमें कंपटीशन करने की जरूरत नहीं। बहुत सारे बात है ना, मुझे वो पोस्टर अच्छा नहीं लगता है। बहुत सारे लोग शैतान जो ऐसा 2 सिंग वाला शैतान और यीशु मसीह के साथ पंजा लड़ा रहा है और वहां पे वो दृश्य दिखता है, मुझे ये पोस्टर पटता ही नहीं है। अरे उसकी औकात क्या है मेरे खुदा के साथ पंजा लड़ाने की? वो मेरे खुदा के पैरों के नीचे कुचला गया है, वो क्या पंजा लड़ाएगा मेरे खुदा के साथ? हालेलुया। वो पोस्टर को देख भेजते लोग, देखो कैसा हमारा परमेश्वर। अरे मेरा परमेश्वर को तुमने जाना ही नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है उसको पंजा लड़ाने की। उसके पैरों के नीचे 2020 साल पहले वो हारा हुआ है और वो हारा हुआ है। हालेलुया। आज हमें बहुत सारे तौर तरीके पता नहीं है, बहुत सारी सेवकाई कर रहे। मैं बहुत बड़ा बाइबल का थियोलॉजिस्ट नहीं हूं, लेकिन मैंने जो पवित्र आत्मा की ओर से जो मैंने सीखा है, जो ज्ञान मैंने पाया है, जो आत्मिक दशा में, मैं वही बातें आपके सामने रख रहा हूं। अपने उज्जाओं को अगर बचाना है, अपने उज्जाओं को, संदूक को अगर सही तरीके से लेके जाना है, तो उज्जा के माँ बाप को, उज्जा के जो भी माँ बाप के पास्टर हो या ना हो, उनको अपने बच्चों को अपने परमेश्वर की व्यवस्था ठीक से सिखानी होगी। अगर ये नहीं करोगे तो मुझे आपको बताना है, कहीं ना कहीं आगे चलकर आप किसी पास्टर के पास जाकर कहोगे पास्टर जी बच्चे सुनते नहीं है। एक समय रहता है जब आप उसको मोल्ड कर सकते हैं, तभी आप उसको मोल्ड कर सकोगे। एक समय के बाद नहीं होगा ये। बहुत सारे मैंने देखा है, वर्शिप करने वाले एडल्टरी में गिरते हैं, वर्शिप करने वाले सुसाइड करते हैं, वर्शिप करने वाले गलत राह पे चले जाते हैं। एक जमाने में खुदा की हुजूरी लाने वाले आज दुनिया में कहीं ना कहीं गिरे पड़े हुए हैं। क्यों? उनकी उज्जा की जैसी हालत हुई है। उज्जा वहां पर मारा गया, लेकिन आज बहुत सारे जवान उज्जा आत्मिक दशा में मर रहे। उसका कारण क्या है? नहीं जानते उतर तरीका। हुजूरी को लाने के लिए हुजूरी के खुदा के वचनों के अनुसार चलना होगा, लेकिन आज ये पता नहीं है किसी को। मैं इन बातों को जब आता हूं, मैं मेरे बच्चों को कुछ बातों के बारे में बहुत स्ट्रिक्टली चलता हूं। हम उनको लाड प्यार सब कुछ करेंगे, लेकिन खुदा की बातों में नो कॉम्प्रोमाइज। फिर वो मेरा लड़का हो या मेरे चर्च का लड़का हो, कोई भी हो, भले वो चर्च में आए या ना आए, अगर वो खुदा के वचनों के तौर तरीके के अनुसार नहीं चलता है, तो मुझे ऐसी संतान नहीं चाहिए जो खुदा के नियमों के अनुसार नहीं चलती है। आज मुझे आपको बहुत ही स्पष्ट रीति से कहने दो अजीजों, उज्जा क्यों मारा गया? उज्जा वो तौर तरीका नहीं जानता था, ना उज्जा जानता था, ना उसका बाप एलियाजर, ना अबीनादाब जानता था। आज मुझे आपको बताना है, ये वचन आपको आपके जीवन में आपको पढ़ना बहुत जरूरी है।
कितने हैं जिन्होंने पूरे बाइबल को अपनी जिंदगी में एक बार पूरा पढ़ा है, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक? कितने हैं यहाँ पर मुझे देखने वाले जिन्होंने पूरे बाइबल का अध्ययन किया है? जिन्होंने किया है उनको मैं सलूट करता हूं, जिन्होंने नहीं किया है मैं विनती करता हूं अपने पवित्र शास्त्र को ठीक से जानो। बाइबल कहती है दानियेल 11:32 में, जो लोग अपने खुदावन को जानते हैं वो बलवान होके बड़े बड़े काम करेंगे। खुदा को जानोगे कैसे? जब उसके कलाम को जानोगे। खुदा उनकी केवल चिन्ह चमत्कार को मत जानो, पास्टर के अभिषेक को मत जानो, गिरना, फायर फायर बोलना, टेक इट फायर, रिसीव फायर, ये मत जानो। आपको आपके खुदा के वचन को जानना होगा, क्योंकि वचन अग्नि है, वचन हथौड़ा है, वचन तलवार है, वचन चट्टान है। जो वचन को जानता है वही हियाव बांधकर बड़े बड़े काम करता है। मैं इस पाठ को आगे लेकर जाऊंगा आगे के समय में, जब मंडे को हम आएंगे। लेकिन आज मैं यहाँ पर आपको ये बात बताना चाहता हूं, क्यों मारा गया, क्यों मारा गया यहाँ पर उज्जिया। उज्जिया मरने का कारण क्या है? उज्जिया क्यों मारा गया? माँ बाप की गलती, खुद की गलती और उस राजा की गलती। राजा ने ना खुदा को पूछा, अबीनादाब ने ना एलियाजर ने पवित्र शास्त्र के अनुसार सद्दूक को किस तरह, क्योंकि अबीनादाब को भी कैसे मलक हो सद्दूक, उसने देखा उस गाय की बैलगाड़ी में पलिश्तियों ने भेजा, उस सब सोने की सारी उस नाना प्रकार की उस ग्रंथियों के उस आकार को बनाकर भेजा था। वो देखकर सारा बैलगाड़ी में आया था, चलो बैलगाड़ी में लेकर। अगर मेरा बाप इस प्रकार से सेवकाई करता है तो मैं भी उसी प्रकार से सेवकाई करूंगा, और मेरे बच्चे भी उसी तरीके से सेवकाई करूंगा। अगर मेरा बाप गलत है तो मैं भी गलत चलूंगा, मैं गलत हूं तो मेरी नस्ल भी गलत है। आज हमें समझना बहुत जरूरी है बातों को। मुझे बताना है कि हमको दुनिया के तौर तरीके, भले हमको वो दुनिया के गाने बजाने नहीं आते होंगे, भले हमको वो कॉर्ड्स और वो आलाप नहीं आते होंगे, लेकिन अगर हमको सही तरीके से वचन को पढ़ना, वचन के अनुसार चलना आता है ना, तो बस स्वर्ग वचन के अनुसार चलने वालों के ऊपर रहम करता है। हालेलुया। बहुत सारी बार कभी कभी हमको तुच्छ जाना जाएगा, अरे इनको तो कुछ आता नहीं है, नो प्रॉब्लम। हमें भले म्यूजिकल ज्ञान नहीं है, लेकिन हमें बिब्लिकल ज्ञान है, जिस ज्ञान के अनुसार हम चलते हैं। हालेलुया। आज आपको यह समझना बहुत जरूरी है। मेरा टाइम खत्म हुआ है। मैं चाहता हूं कि अजीजों आज आपको समझो, आप भी जाकर स्टडी करो। जो मैंने गणना की किताब में से, जो गिनती के किताब में से मैंने 6ठे अध्याय से जो बातें आपको मैंने आज बताई, उन बातों को आपको समझना होगा। जो 4थे अध्याय में से दाऊद की क्या गलती थी? आज बिना गलतियों के द्वारा आज बहुत सारे लोग मारे जा रहे, बहुत सारे उज्जिया खत्म हो रहे, भले शारीरिक दशा में नहीं लेकिन आत्मिक दशा में। शुरुआत तो आत्मा से करते हैं, लेकिन अंत शरीर में, देह में होता है। क्या आपको एक अच्छी शुरुआत करनी है? अपने परमेश्वर के कलाम को समझो, उसके साथ समय बिताओ। आज बहुत सारे पासवानों की जो संतति है, बहुत सारी गलत राह पे चल रही। क्यों? अब कभी कभी इन बातों की वजह से लोग आज दोष भी लगा रहे हैं। इसके वजह से, जैसे पौलुस कहता है कि इस बातों की वजह से सत्य मार्ग की निंदा हो रही है। आज कहां पर जा रही है हमारी संतति? पासवान होना बहुत इजी है, लेकिन उसके साथ साथ पासवान अच्छी संतति को, अच्छी नस्ल को चलाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है बातें। मेरी ये बातें शायद कड़वी लगती होगी, लेकिन मुझे आपको बताना, ये कड़वा घूट काढ़ा समझकर, जैसे अभी कोरोना वायरस के बहुत सारे डॉक्टर बन गए, वैद्य बन गए, अलग अलग काढ़ा आज बहुत सारे लोग हमें भेज रहे हैं, और वो काढ़े के द्वारा बहुत सारे लोगों को फायदा भी हो रहा है। ले लो ये काढ़ा, ताकि कोरोना वायरस से आप दूर रहोगे। लेकिन आज मुझे आपको बताना है, पाप के वायरस से अगर दूर रहना है तो आपको ये वचन का कड़वा काढ़ा भी लेना होगा। आपको समझना होगा आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, आपके बच्चों की स्टाइल क्या है, उनके बाल कैसे, उनके कपड़े कैसे, उनकी बातचीत कैसे, उनके दोस्त कैसे। इन बातों के ऊपर आपको अमल करना होगा। अगर नहीं करते हो तो आप पलिश्ती लोगों का तरीका, तौर तरीका अपना रहे हो। ये तौर तरीका आप, मैं देखता हूँ कोई वर्शिप में खड़ा रहता है फटी पुरानी पैंट पहनकर, कानों में बालियां पहनकर, बड़े बड़े बालों को लगाकर गा रहा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। शैतान हंस रहा है उसके ऊपर। हालेलुया। मेरी बातें, मैं नॉन बिब्लिकल बातें नहीं कह रहा हूं, मुझे आपको बिब्लिकल बातों पर लेकर आना है। उज्जिया क्यों मारा गया? ये दूसरा शामुएल का 6ठा अध्याय, 30,000 लोगों की शुरुआत हुई है। इच्छा योग्य थी, लेकिन तरीका गलत था। आपकी इच्छा भी योग्य होगी, मेरे बच्चे मैं अच्छी सेवकाई करें, लेकिन तरीका योग्य होना चाहिए। अगर तरीका योग्य है, इफ योर
will is right but pattern is wrong, you will fail, you will be fail. अगर आपकी इच्छा योग्य है लेकिन तरीका अगर गलत है, आप हारोगे। लेकिन आपकी इच्छा के अनुसार, बाइबल के अनुसार तरीका योग्य है ना, आप जहां जाओगे वहां आप जयवंत होंगे, क्योंकि खुदा की हुजूरी में पर्वत मोम की नाई पिघलते हैं। संदूक को लेके जाना मतलब हुजूरी को लेके जाना। जब आप हुजूरी के लेकर जाओगे तो यरदन 2 हिस्से में फटती है, लाल समंदर 2 हिस्से में फटता है, यरदन के साथ साथ यरीहो की दीवार भी गिरती है, सब आकाश में से मानना मिलता है, दिन में मेघ स्तंभ, रात में अग्नि स्तंभ, सारी बातों में हमें वो जयवंत करता है जब हुजूरी को हम सही तरीके से लेकर जाएंगे। इच्छा योग्य होनी चाहिए, तरीका भी सही होना चाहिए। आइए अपने सब को झुका दें। प्रभु जी हम पर दया कर। शायद हमने इच्छा योग्य रखी थी लेकिन हमारे तरीके गलत थे, क्षमा कर प्रभु। लेकिन यहां से आगे तेरी हुजूरी को, उस संदूक को, तेरे पुत्र परमेश्वर यीशु को आत्मा की अगुवाई में लेके चलने के लिए प्रभु जैसा वो था जैसे वैसे हमें बनने के लिए सहायता कर प्रभु। तेरी हुजूरी के साथ हम खिलवाड़ ना करें प्रभु। बहुत सारे लोग आज सेवकाई में खिलवाड़ कर रहे प्रभु, अपनी मनमानी कर रहे प्रभु, उनको बदल दे राजा और सही तरीके की व्यवस्था के अनुसार तेरे संदूक को मतलब तेरी हुजूरी को लेके चलने के लिए खुदावन तेरी आत्मा के द्वारा तू अगुवाई कर। सभी को छू ले। मुझे देखने वाला अगर कोई बीमार है उसको छू ले। 1 पत्र 2:24 के अनुसार मैं स्वीकारता हूं यीशु नासरी के कोड़े खाने से वो चंगे हो गए। दया कर। अब प्रभु इस वचन को ग्रहण कर कर उसके अनुसार चलने के लिए दुनिया के तौर तरीके को निकाल कर तेरे तौर तरीके और तेरे नियमों को आप परमेश्वर तेरे पैटर्न को लेकर चलने के लिए पवित्र आत्मा में योग्य इच्छा के अनुसार तू हमें अगुवाई कर। सभी को तेरे पवित्र हाथों में समर्पित करता हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, तेरी महिमा करता हूँ। तूने अद्भुत काम किया है। सारा आदर आपको देते हुए खुदावन यीशु के नाम में मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। अगले बुधवार को इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। बने रहो इन सब बातों में। बहुत ही गहराई की बातें, मैं ज्यादा बातें बता नहीं पाया समय के पाबंदी की वजह से। मेरा ही पेज है लेकिन ये पेज मेरा नहीं तो खुदावन का पेज है, तो मुझे भी नियमों के अनुसार चलना बहुत जरूरी है। खुदावन आपको आशीषित करे और योग्य इच्छा और सही तरीके से खुदा की हुजूरी को अपने जीवन से उठाकर लेके चलने के लिए, कैरी करने के लिए पवित्र आत्मा आपकी सहायता करो। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू।